वो लोग जो कि सिर्फ अपनी डिग्रियां इकट्ठी करने में लगे हैं, उनको 21वीं शताब्दी का अनपढ़ कहा जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग के बारे में आप हमें बताइए कि ये क्या है और इससे क्या फ़ायदा होता है? एनी राइटिंग फॉर एग्जाम्पल इज क्रिएटिव। आप अगर कोई भी चीज जो आप सोच रहे हैं ना, अगर आप उसको लिखेंगे तो वो वैसे ही नहीं लिखेंगे जैसी आप सोच रहे हो। आपने एक डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ी होगी ना, जो हॉलोकॉस्ट में लड़की थी, उसने सिर्फ डायरी लिखी। आज वो दुनिया की ऑलमोस्ट हर भाषा में ट्रांसलेट होकर लोग उसको पढ़ रहे हैं। कभी भी किसी से ज्ञान मांगने में कोई संकोच मत करिए, है ना। ज्ञान मांगना भीख मांगने से बहुत अच्छी बात है। Welcome everyone. My name is Bobby Thakur. I am the host of this podcast. So this podcast name is Reveal. Here we reveal the secret for a better life. And today in this podcast to reveal some secret of better life, we have a wonderful guest with us, Dr. Pramod Mehra. He has been teaching in different universities. Earlier he used to teach in Delhi University, and from last 20 years now he is professor teaching literature, language and culture in IGNOU University, which is world's largest open university. So let's hear from directly from Dr. Professor Pramod Mehra. Welcome, sir. Wonderful. Thank you very much. The name that you have thought of for this podcast is very impressive. I mean, it's a bit of no. I mean, power ridden word, revealing. No, I would if I had the chance. No, I mean, I would call it sharing. So, but Sharing. whatever is this. No. So I will Okay. try to, I mean, share whatever I have in terms of my ideas, thoughts, feelings, and then some speculations about this world, which I have managed to accumulate over the last about 30 years. Perfect, perfect. So, sir, the first question Hmm. is this: अगर कोई प्रोफेसर प्रमोद मेहरा बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है? Mhm. What is your story to become this? Well, like, I mean, in you said that, every drop is an ocean, and every ocean, is formed by drops, no. And if you ask me about myself, I grew up in a small village. You can say the smallest unit of Indian democracy, then a district headquarter, and then state headquarter, and then the national headquarter. And then because I operate in world's largest open university, I connect to students across the world. No, so it's a journey, kind of 360-degree kind of kind of engagement, and I feel so fulfilling that I think that I can now communicate about what professorship is, what life is, and maybe certain hints that I can pass on to people, to my, with this, highest degree of humility, of course. Okay, okay, great, great. तो फर्स्ट लेसन, आपकी लाइफ का पहला ऐसा कौन सा लेसन आप हमें शेयर करना चाहोगे हमारी ऑडियंस के साथ में, जिसने आपको ट्रांसफॉर्म किया हो? Well, the no lesson in the sense that we are holding it a very lively conversation. So please understand that whatever I'm saying is absolutely like I'm trying to reach out to you, not in the sense of lesson, but I feel what Panini said. Panini said that the word creates the world. No, एक शब्द ही एक विश्व का निर्माण करता है। शब्द ही ब्रह्मा है। शब्द ही एक पूरी दुनिया का, आप कह सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट सीक्रेट है, दैट वी शुड लर्न टू एंगेज विद वर्ड्स। नो, अगर आप उस चीज की शब्द की गरिमा से परिचित नहीं हैं, तो आप उसको सीख नहीं सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हमें वोकैबुलरी सीखनी है, हम कई बार वर्ड्स नए नए सीखते हैं हर रोज। हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि आप हर रोज कम से कम 10 वर्ड्स तो नए सीखिए। तो सिनोनिम एंटोनिम की फॉर्म में हम सीखते हैं। बट हर वर्ड की, देखिए, लैंग्वेज की क्या पावर है कि नो वर्ड इज सिमिलर।
इवन व्हेन वी से कि ये सिनोनिम है, Hmm. वो दिखते एक जैसे हैं, दे मे लुक लाइक मिरर इमेजेस, Hmm. but every word is an outcome of larger social, political, cultural churning. So we should spend some time with a good word, every word, no. I mean, आप कैसे दोस्त, आप जैसे आप शब्दों, आप जैसे अपने दोस्त चुनते हैं ना, आपको शब्द चुनने चाहिए और उन्हें दोस्त बनाने का प्रयास करना चाहिए. I think that to attain a sense of familiarity with a word is something, but then to achieve oneness with that word is completely different. आपको कब ऐसा लगा कि यार वर्ड्स में ना बहुत पावर है? बोलते तो हम बचपन से हैं, बचपन से बोलना हमें पेरेंट्स सिखाते हैं, बोलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन कब आपको लाइफ में पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, आप क्या बोल रहे हो, वर्ड बहुत मैटर करता है? सो व्हेन यू गॉट दैट इनसाइट एंड व्हाट वाज दैट इंसिडेंस इफ यू रिमेंबर? मुझे बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं. देखिए, अगर आप किसी को आप प्राइज दे रहे हो, है ना, आप अपनी कंपनी में, अपने सोशल सराउंडिंग में, आप अपने आप देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, जब आप किसी को पुरस्कृत करते हैं, व्हेन यू काइंड ऑफ एक्नॉलेज समबडीज रोल, तो उस शब्द का चुनाव देखिए. और जब आप उसको पनिश करते हो, है ना, जब आप उसको किसी को रिजाइन करने के लिए बोलते हो, किसी को आप सस्पेंड करते हो, टर्मिनेट करते हो, तो एवरी वर्ड इज अबाउट पावर, every word is about history, every word is about ideology, no. But I think that today, when we are discussing this, I feel that if words do not have compassion, I think we will have a very brutal understanding of language, no. Every word has to have a compassionate kind of input, a layering that has to take place. So if even if I have to punish somebody, there has to be a sense of compassion involved into this. So if you read, for example, Martin Luther King, for example, no, what do you mean by the word hope? What do you mean by the word dream? What do you mean by the word peace? No, I think, like, when you hear this word, no, like for example, Martin Luther King says, no, I have a dream. I have a dream that the people white in skin and black in skin will walk together on the streets of America, and they will not be judged on the basis of the color of the skin, but on the basis of the character of their personality, on the basis of the qualities that they represent. This is the dream. So the word dream acquires a different thing. You understand? So, like, when we have compassion, when we have a certain degree of not just say something to communicate, but to be part of this, say, race, and in this movement of humanity, that is important. Right. Okay, so the power of word is very very important, and you realize that the word has so much of power. और वही एक लेसन आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है. ग्रेट, ग्रेट. सो डॉक्टर मेहरा, सेकेंड लेसन आपकी लाइफ का आप क्या हमें रिवील करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ? Yes, so, like, again, like, when we are talking about words, I mean, my role as a teacher is that, teacher is about strength. Teaching profession, or if you are a doctor, for example, if you are administrator, if you are occupying a role where you can influence the life of people, I think it's about authority, control, command, and sense of autonomy. But I feel that one should be vulnerable. One should always be, like, pro people, like, willing to step into somebody else's shoes, no. आप अगर मुझे आपके जूतों में पहनना पड़े तो मुझे लिए मुश्किल होगा ना, but I should always be keen. I should always be willing to kind of step into somebody else's shoes. So I feel that, even if I have achieved a higher degree of understanding of my domain, my subject, my situation, but I should still remain, oh my God, like, I will, if sometimes, I'll deliberately, oh, I don't know, let's think about it together. No, if a student asks me this question, no,
So perhaps I don't know. Let us think about it together. No. So this idea of pairing with your stakeholders, pairing with your people, and then like I think that vulnerability, that idea of is not about weakness. It's about kind of taking people along and kind of nurturing your inner imagination about everything else. Okay. So, Dr. Mehra, we want to understand, because we are doing a lot of work in psychology. साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में? देखिए साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस तो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि जो है पूरा एक टेंजेंशियल टर्न आया है। टेंजेंशियल टर्न इस हिसाब से कि पहले हम आज अगर आप आज से 50 साल पहले देखेंगे तो साहित्य जो है वो टेक्स्ट सेंट्रिक था। किताब बहुत इम्पोर्टेंट होती थी, लेखक बहुत इम्पोर्टेंट होता था, उसकी सिचुएशन बहुत। बट दीज डेज दीज एंटायर लैंडस्केप ऑफ लिटरेरी स्टडीज, जिसको आप कह सकते हैं लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर स्टडीज का जितना भी डोमेन है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक साइकोलॉजिकल आर्काइव ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल आर्काइव ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशनल मूवमेंट। अब आप कभी ध्यान नहीं देते हो कि जैसे उस फिल्म में कितना, जैसे हम पहले क्या सोचते थे कि हम ये देखते थे कि कितने कैरेक्टर हैं, कौन हीरो है कौन हीरोइन है। अब क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, what is the idea of what he says is not important, what he does not say is more important। आप समझ रहे, जैसे फ्राइड ने आके बात करा कि द आइडिया ऑफ सबकॉन्शियस, उसके बाद यूंग आए, उसके बाद आप कहेंगे बहुत सारा, बहुत यमुना में बहुत सारा पानी बह गया है। अब तो ये बात है कि हम अब रीडर सेंट्रिक बात कर रहे हैं, क्योंकि रीडर विल क्रिएट वंस ओन मीनिंग। अब आप लिटरेचर में बात कर रहे हैं, द ऑथर इज डेड एंड ऑथर इज डेड एंड द रीडर इज बॉर्न। पहले ये होता था कि रीडर को कोई स्पेस नहीं होता था उस कहानी को उसके मायने बताने में, ऑथर ही बताता था जनरली, या कुछ क्रिटिक्स बताते थे। अब आप देखेंगे कि हर व्यक्ति, अगर वो महिला पढ़ेगी उस कहानी को तो उसमें एक महिला हीरो निकलेगी, अगर एक छोटे शहर से आदमी पढ़ रहा है तो उसका अलग यूनिक, क्विंट एसेंशियली यूनिक एक मीनिंग निकलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लिटरेरी स्टडीज का लैंडस्केप पूरी तरह से बदल चुका है, और अब साइकोलॉजी जिसको आप कहेंगे कि जैसे हीगल और मार्क्स के टाइम में, हीगल और बुद्धा के सेंस में डिबेट होते हैं ना, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना, डिकार्ट्स के बात हम करते हैं जिसमें हम बात करते हैं व्हाट वी आर, वी आर बिकॉज वी थिंक। Buddha is, was, I think, the first person to point out we think, therefore we are. We are. So that thing has become more important. And in the modern day, for example, last 50 years, about 50,000 new books have come up. Life narratives, fiction, poems, travelogues, everything. If you read a story, you'll find that somebody is trying to interpret, narrate something which cannot be simply communicated through words. So readers' active engagement, readers' understanding in terms of psychology is more important these days. Right, great. अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आजकल लोग फोकस भी कर रहे हैं। इवन हम देखें अभी लेटेस्ट जो बजट पास हुआ है, इसमें भी मेंटल हेल्थ को 1 लाख करोड़ रुपीस का सैंक्शन बजट किया गया इंडिया के मेंटल हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने। तो मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा अगर हम जाएं, आपके लिए मेंटल हेल्थ क्या है ना, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? देखिए हमें एक खास आइडिया पे एक खास फोकस नहीं रखना चाहिए। जैसे हम मेंटल हेल्थ बात करें, हेल्थ एज सच इज इम्पोर्टेंट ना, लाइक अगर आप पिछले 100 ईयर्स का हम ट्रैक करेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे पहले सिर्फ हेल्थ इंपॉर्टेंट होती थी। जैसे हम अल्मा एटा डिक्लेरेशन आप बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में आप पिछले 100 साल में अलग अलग समय पे सरकारों ने
डिस्कस किया है, इवन यूएन लेवल पे अलग अलग डिक्लेरेशन आई। तो उसकी डेफिनेशन पे पहले फिजिकल हेल्थ यूज्ड टू बी द सेंटर, फिजिकल हेल्थ की बात होती थी और उसके ऊपर एम्फेसिस होता था। आज के दिन चीज़ें बदली हैं, बिकॉज हम ये बात सोच रहे हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ विल डिटरमिन एवरीथिंग। तो ये वाली बात है, पर हम अभी भी, मैंने महसूस किया है कि हम वी आर स्टिल सैंडविच्ड बिटवीन द फिजिकल हेल्थ एंड द आइडिया ऑफ मेंटल हेल्थ। आपने वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीडियो देखा होगा जिसमें कपिल देव कह रहे हैं, वो ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेटर्स, for example, Kohlis and Sharmas and Suryavanshis and all those. He would say that अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम छोड़ दो, no? You understand, which is a very orthodox opinion, no? He's saying that if you cannot face the challenge, no? I think that in the last say 30 to 40 years, the situation has become much more dense, no? The idea and understanding of mental health is so important that we need to absorb it with say, if not with a general understanding, but with a clinical understanding, no? And we cannot simply brush it off. It is easier saying that अरे कुछ नहीं होता, ये चीज, ये mental health कुछ नहीं होता. I mean, I'm not trying to criticize anybody here, but I feel that because as a generation, we have reached a point where we have to engage with these questions. I mean, in an intergenerational sense, I tell you, for example, like I'm not the one carrying my own story. I'm person like who will carry forward my whole family's story. If I'm located in say West, if I'm traveling to Australia, for example, I'm taking the Indian story there. You understand? So Right. it is geographical, it is intergenerational, and it there are layers that our mind has, and perhaps sometimes it is not easy for everybody else to see it in the first instance. So आप उससे बात करें, आप उससे समझें, आप उसको, कई बार तो हम खुद भी उस समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे बिकॉज जो आज खासतौर पे हम मेट्रोज में जो एंगेजमेंट है हमारी, कि हम जैसे राज कपूर बोलते थे ना कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, है ना? सो वी आर इन फैक्ट दी, यू कैन से microcosm of the whole world, because of this rapid globalization, because of this multi-dimensional, multi-layered engagement with this world. We are doing it at an individual level, also at a team level. So like that, I feel that we need to be very of course we cannot be overwhelmed. I mean, it's not that we will get challenged and will be depressed about it, but at a very healthy level we should negotiate with this question of mental health. How do you take care of your mental health? Well, my idea is to be public. Like if there is something, I go out. I mean, if there is something troubling me, sometimes every person, for example, will be troubled by the idea of death. Oh my God, I have to go away. But if I talk to Bitter truth of life. yeah, like I mean, we can escape everything, but not this idea of impending, that we are perhaps dying with each passing day. I mean, every birthday, for example, I mean, for me, it will cause alarm in my mind. Oh my God, one more year is gone. When everybody else is wishing me, I'll feel a little down in my head, but I'll talk to people. So my remedy is that I go out and talk. I'll go out and engage with people. If I talk to elderly person about it, he or she will give me a kind of ready recipe, and I'll feel light about it. I mean, and as a teacher, for example, reading is that living in public. I mean, sometimes you cannot go out. Like suppose if you are feeling stiff about it in the late hours of the day, I mean, you can pick up a good book, and you can be one on one with, say, what Charles Dickens is saying about it, what say these Nobel laureates, these people who are I mean, sitting so distant in distance,
but they will communicate to you. सो यू आर सेइंग कि आप बाहर जाते हैं और फिर पढ़ते भी हैं, अगर Uh, इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो आउट, देन यू रीड एट दैट टाइम. and people say that no, if you don't want to spend anything, but if you want to travel the whole world, reading is that avenue. I mean, I can just pick up one nice book and I can seamlessly, without any passport restriction, travel to America, say Sydney, and then say Latin America or Antarctica, for example. awesome, awesome. अच्छा, अभी हम बात करना चाहते हैं ये जो यूजीसी ने अभी रिसेंटली ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम्स बैन करे हैं. साइकोलॉजी इज वन ऑफ देम. देयर आर सो मेनी अदर प्रोग्राम्स आल्सो. तो हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? बिकॉज अगर हम इग्नू की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस ऑनलाइन कोर्सेज हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की हम बात करते हैं, ऑनलाइन का हम रहने देते हैं, तो इग्नू रन करता है. तो इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट है एंड व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट? बिकॉज ये भी देखने को आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपोज कर रहे हैं. 2 से 3 हजार लगभग याचिकाएं दर्ज हुई हैं कि दिस डिसीजन इज नॉट राइट, स्टूडेंट्स ने दर्ज किया है. सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, जैसे हमारी जो रेगुलेटिंग एजेंसीज है ना, उनके पास एक बड़ा डिफिकल्ट चॉइसेस होती हैं. तो I'll give you the entire picture of it. One is that now they have to protect the sanctity. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जब 1985 में इग्नू आई, तो इग्नू इसलिए आई थी कि शिक्षा बहुत महंगी हो रही थी. शिक्षा जैसे एक एलिटिस्ट टैग के साथ आ रही थी. एजुकेशन में अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात करते थे ना, तो बहुत कम फैमिलीज, मैं आपको बात कर रहा हूँ 80s की, 70s 80s की, उस समय भी यही चैलेंज था कि तो फिर ये बात आई कि इग्नू होना चाहिए, इग्नू आना चाहिए. फिर कहीं ना कहीं वो बात मिक्सअप हुई कि इग्नू BA MA के कोर्सेज ज़्यादा देने लगी, और जो रेगुलेटिंग एजेंसीज थी, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ICT है, और हम इसमें साइकोलॉजी का पॉइंट हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अब क्योंकि हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, उसमें ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है. तो पिछले 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि हर सेमेस्टर में, हर 6 महीने में 10,000 से 15,000 के हमारी स्टूडेंट्स आते थे. अभी जो है रेगुलेशन के नाम पे ये आया है कि जिसमें प्रैक्टिकल होता है, लैब कंपोनेंट जिसमें होता है, जिसमें क्लिनिकल इंटरवेंशन है, उसको आप उस कोर्स को डिस्टेंस मोड में नहीं ला सकते. तो ये एक क्वालिटी चेक मैकेनिज्म के तहत किया गया है. आप इसको क्रिटिकल ये सोच सकते हैं कि अभी बहुत सारे हम भी इससे एंगेज कर रहे हैं यूजीसी से, कि हम अपने, क्योंकि हम जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे, हम उनका ध्यान रखते हैं. इग्नू इज़ वेरी पर्टिकुलर कि जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, जो लैब एक्टिविटी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. कि आपको उन कॉलेजेस में जहाँ पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक लैब एनवायरनमेंट है, वहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो वो वाले क्वेश्चन आने नहीं चाहिए थे. ये जो सवाल है, ये जो जो एक सेंस ऑफ बैन आया है, ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है. हमारे सारे स्टूडेंट्स से बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं, और हम नेगोशिएट कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट के साथ. और मेरी पर्सनली अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिसी मेकर्स इस बात को ग्रेजुअली समझ पाएंगे कि जो डेमोक्रेटाइजेशन है और जो क्वालिटी चेक है, इसमें कोई क्लैश नहीं है. इसमें हमें लगता है कि जैसे अगर हम कहें कि लीगल एजुकेशन को अगर हम ओपन एजुकेशन से स्टार्ट कर दें, अब आज के दिन वैसे एवेन्यूज अवेलेबल हैं. टेक्नोलॉजी, जैसे मार्शल मैकलुहान टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं कि हम आज के समय में 21st सेंचुरी में, जब हमारे पास इतनी एडवांस्ड टेक्निक्स आ गई हैं, आजकल तो हम MBBS मेडिकल कोर्सेज के भी लैब का कंपोनेंट हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कर सकते हैं. तो हमें अपने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, एजुकेशन की नीड्स को डिसरप्ट नहीं करना चाहिए.
my own understanding in this, that we should go all out to tap all our resources to facilitate the need of our students, those who are in the pursuit of professional skills, be it medical, be it engineering, be it psychology related courses. Mm. So I would still not be critical, in the sense that, this every mechanism is a work in progress. No, so maybe this decision will be looked at again with a different perspective, say in the near course of action, in the near course of future, and then we will be able to see, a better light of the day. राइट राइट, क्योंकि आप देखिए, अगर जैसे आपने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस तरीके के, और दुनिया डिजिटल हो रही है, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जब हम ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, तो ऑनलाइन पढ़ भी तो सकते हैं। हम्म, जब ऑनलाइन हम प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं, वी आर यूटिलाइजिंग आवर स्किल्स, गेनिंग द स्किल्स रिलेटेड टू द सेम थिंग शुड नॉट बी अ चैलेंज द प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा लुक बैक आई थिंक अथॉरिटीज को करना चाहिए। हाँ, वो होगा, तो मुझे आई एम वेरी होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. right, right. So now I also want to understand your views on education of India, future education of India. आपने देखा था कि 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, राइट, और इधर से स्किल इंडिया के थ्रू भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट जो है इंडिया में लोगों को स्किल बनाने के लिए, तो एक मूवमेंट तो चला है, राइट। वो जो पुरानी जो एजुकेशन जो तरीके थे वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसमें कुछ फिलोसोफर्स हैं, जैसे मार्शल मैक्लुहान है, इसमें एल्विन टॉफलर है, एवरेट रॉजर्स है, और आप अपने, अगर आप इंडियन नॉलेज सिस्टम से बात करेंगे तो पतंजलि, आप विनव गुप्त, आप अपने जो है इसमें पाणिनि को ले सकते हैं। हाउ आपको याद है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ए सिविलाइजेशनल फोर्स। आप तक्षशिला और नालंदा की बात करें, विक्रमशिला की बात करें, तो आपने हमेशा से इस दुनिया को एक एक आप कह सकते हैं कि वी आर नॉलेज एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड, हाँ। तो उस सेंस में अब समय आया है कि वी हैव नाउ कम आउट ऑफ द कॉलोनियल शैकल्स, और अब हम अपने आप को रिसिचुएट कर रहे हैं। 100 ईयर्स 2047 में बात है, पर मुझे लगता है वो अभी शुरू हो चुका है। 2020 में जब हम एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो अब लोगों ने समझ लिया है that education is not about degrees, no, education is not about say papers, which we hang, के हम जैसे उसको फ्रेम करवा के रूम में लगाते हैं। अगर आपको सामने समझ नहीं आ रहा है कि और इस आदमी के पास तो सही से शब्द भी नहीं है बोलने के लिए, तो ये कैसे, इसने एमए इंग्लिश किया होगा या एमए हिंदी किया होगा, इसके पास तो प्रचुर मात्रा में शब्दों का एक भंडार ही नहीं है, ये कैसे अपनी बात को कहेगा, हाँ। तो अब बात हो गया है कि क्या आप अनलर्न कर सकते हैं, क्या आप रीलर्न कर सकते हैं, क्या आप अडेप्ट कर सकते हैं, हाँ। जैसे एल्विन टॉफलर इस बात को बहुत मजबूती से कहते हैं कि वो लोग जो कि सिर्फ अपनी डिग्रियां इकट्ठी करने में लगे हैं, उनको 21वीं शताब्दी का अनपढ़ कहा जाएगा। वो उनकी उनकी सोशल प्रेस्टीज कुछ नहीं होगी अगर आप अनलर्न नहीं कर सकते। आप अब मान लीजिए, मुझे अगर मैं नई नई भाषाएं नहीं सीख रहा हूँ, अगर मैं नए नए शब्द नहीं सीख रहा हूँ, अगर मुझे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो मैं कभी भी कम्युनिकेशन के डोमेन में सफल नहीं हो सकता हूँ, है ना। इस दुनिया में कितनी सारी भाषाएं हैं जो कि कम से कम मुझे उसका पता तो होना चाहिए, काउंट तो होना चाहिए। इंडिया इज इनक्रेडिबली इन अ वे ब्लेस्ड विद लैंग्वेजेस। आपको आप अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितनी भाषाएं हैं, आप काउंट करते करते थक जाएंगे। हाँ, इतनी भाषाओं का, इतनी बड़ी संस्कृतियों का हमारा देश है, और शिक्षा जो आती है वो भाषा से आती है ना। यानी आप समझ रहे हैं, जो कोई भी स्किल आएगा वो आएगा वो भाषा से। वो रियलाइजेशन हमने 2020 में जो एनईपी हम बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हमने उसको रीइंफोर्स किया है कि अब हम
अपनी मदर टंग्स में हम उनको सभी भारतीय भाषाओं का सम्मानपूर्वक हम उनको अपने अंतःकरण में शामिल करेंगे और अपनी भाषाओं को बढ़ाएंगे। एक बात भी पहले बहुत बड़ी मिथ्या थी, एक ऐसा था कि क्या से हम मेडिकल पढ़ाई कैसे कर सकते हैं हिंदी में या किसी भी भारतीय भाषा में, पर अब ऐसे प्रयोग हो रहे हैं। और मुझे लगता है अगले 5 से 10 साल में जिस हिसाब से ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में मशीनों का, जैसे टेक्नोलॉजी का एक एक इंटरफेस हुआ है, अब हम वो बहुत सीमलेसली कर पाएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि जब हम एक एक नई नॉलेज रेवोल्यूशन देखेंगे। अभी देखिए, जैसे आपको मैं बताऊं कि अभी तो हमने जो है सिर्फ हिंदी भाषा के से हम परिचित हैं। अभी जब भारतीय भाषाएं जितनी हैं, जैसे हम 8 शेड्यूल की बात तो करते ही करते हैं, जिसमें कि 22 भाषाएं हैं, जिसमें और बहुत सारी भाषाएं और भी आने के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं। और जितनी भाषाएं हमारे देश में हैं, अगर हम उन सब के एवरी लैंग्वेज इज फंडामेंटली अ बिग फॉर्मिडेबल कल्चरल नॉलेज रिजर्वॉयर। वो उसमें उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान का संसार है, होता है हर भाषा में। तो जब हम उसको टैप कर पाएंगे तो हम वास्तव में स्थापित कर पाएंगे कि भारत एक देश नहीं है, भारत वास्तव में पूरी दुनिया का एक सिविलाइजेशनल क्रेडल है। हम यहीं पे आप हम दुनिया को, जैसे हमें मल्टीकल्चरलिज्म बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से समझ सकते हैं और एक हम मॉडल प्रेजेंट कर पाएंगे पूरी दुनिया के सामने ऑफ अ पीसफुल लाइफ। और अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है कि आजकल लोगों का रुख ना वो इस ट्रेडिशनल एजुकेशन की डिग्री लेनी है, उससे ज्यादा जा रहा है कि हमें स्किल लेनी है। एंड पीपल आर गोइंग आउट टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड। भले ही उसके बदले में उनको कोई डिग्री नहीं मिल रही है, बट दे आर लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम देम। और लोगों को समझ में आ रहा है कि स्किल लेंगे तो लाइफ में बात बनेगी। सिर्फ जैसे आप वाली बात है, वो डिग्री इकट्ठा करने की वो जरूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट अकॉर्डिंग टू यू आल्सो। यस, आई फील दैट नो, जो आपने बात करी टेक्नोलॉजी की, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बट मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे एक मार्शल मैकलुहान का टर्म है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, कि जो चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी नहीं होएगी वो ख़त्म हो जाएगी। जो जो आप प्रोफेशनल वाइज देखिएगा, जैसे जो भी प्रोफेशंस टेक्नोलॉजी का उतना भरपूर फ़ायदा नहीं उठाएंगे ना, वो चाहे तो सफ़र करेंगे या शायद ख़त्म भी हो जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि इट हैज़ टू बी साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है कि जो चीज़ मानव सभ्यता के जब हम उसके साइकोलॉजिकल डायमेंशन से जुड़ी नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बट टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का एक होलिस्टिक मिक्स होना चाहिए इस मामले में कि टेक्नोलॉजी का जो पिछले 20-30 साल में विस्तार हुआ है या जो अगले 10 साल में होगा, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं, करिश्मा होगा। हाँ, जैसे हम एआई की जो आप आज हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आप उसमें हम आप जब आप कह सकें कि हम एक तरह से नई दुनिया हो जाएगी वो सब कुछ, है ना। पर मुझे लगता है कि जो साइकोलॉजिकल फील्ड में जो नॉलेज चर्निंग हो रही है ना, आपको मैं बताऊं कि अगर 2000 साल के साइकोलॉजी के ज्ञान को एक तरफ रखा जाए और 2000 से 2024 तक के ज्ञान को एक साथ रखा जाए, तो आपको लगेगा कि जितना जितना प्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, रिसर्च हुई है पिछले 25 साल में, और वो 2000 साल की एक तरफ और एक एक तरफ। और अब आप ये भी समझिए, साथ साथ हर साल जो नई रिसर्च होगी वो पिछली रिसर्च से और एक स्टेप अप होगी। और हर साल ये हो रहा है कि जो रिसर्च नहीं आ रही है उससे पुरानी सारी चीजें कई बार तो झूठी साबित होती हैं। क्या पता हमें ये लगे कि जो अभी तक हम सही मान रहे हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में, 2026 में या 2027 में वो एक नई रिसर्च आए और वो कहे कि हम तो शायद मजाक कर रहे थे। ये भी मैं इसको बहुत बड़ी, मैं एक सेंस ऑफ
आप कह सकते हैं कि मैं एक ब्रेथलेस तरीके से वेट करता हूँ इस बात की कि क्या रिसर्च होगी अब, क्योंकि अब जो है जो ह्यूमन माइंड के ऊपर जो एनालिसिस हो रही है, पहले कभी इतनी फोकस नहीं था। अब हर कंट्री में मोर देन टेक्नोलॉजी, मैं बता रहा हूँ, सब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ तो देख रहे हैं, पर जो माइंड के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, जो लिटरेचर आ रहा है, आप देखिए कि कितनी, अगर ग्लोबल लेवल पे किताबें देखेंगे, हर भाषा में हजारों हजार किताबें आती हैं हर साल, माइंड के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर। हाँ, कहानियां तो अलग ही हैं, खैर वो तो बिल्कुल अलग है, पर जो एक एक रिसर्च जिसको आप बोलते हैं, मेडिकल, क्लिनिकल, बिहेवियरल रिसर्च जो हो रही है, हर डिसिप्लिन उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। आप मानेंगे कि कोई भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है आज के दिन, चाहे अगर आप जाएंगे ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, आप जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो साइकोलॉजी एक तरह से जो प्रभावित नहीं हुआ है। हर साल एक 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 नई युग की शुरुआत मुझे लग रहा है कि हो रही है आप, हाँ? और हमें इसको बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए, और हमें इससे जुड़े हुए जितने भी एवेन्यूज हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, बजाय के ब्लॉक करने। कोई भी ऐसा पॉलिसी डिसीजंस नहीं होना चाहिए जो इस रास्ते में रोके। हाँ, क्योंकि ये सारी मानवता से जुड़े हुए एक जो जो आप कह रहे हैं प्रोसेस है, उससे जुड़ा हुआ है, तो हमें इसके प्रति बहुत सजग रूप से बहुत इसको फैसिलिटेट करने का प्रयास होना चाहिए हमारा। राइट, राइट, अमेजिंग, अमेजिंग। आप क्रिएटिव राइटिंग के बारे में बहुत बात करते हैं, इनफैक्ट यू आर ऑल्सो थिंकिंग टू बिल्ड समथिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट। क्रिएटिव राइटिंग के बारे में आप हमें बताइए कि ये क्या है और इससे क्या फायदा होता है। देखिए, एनी राइटिंग फॉर एग्जांपल इज क्रिएटिव। आप अगर कोई भी चीज जो आप सोच रहे हैं ना, अगर आप उसको लिखेंगे तो वो वैसी नहीं लिखेंगे जैसी आप सोच रहे हो। योर द आइडिया ऑफ राइटिंग इज सो सैक्रोसेंट, सो यूनिक। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस बात से देखेंगे कि हमें क्रिएटिव राइटिंग करनी है, उसमें नहीं करना है, आपको सिर्फ राइटिंग करनी है। जैसे जर्नलिंग से शुरू कर, आजकल तो बड़ा लोग इसको करते हैं कि दे वुड इन एट द एंड ऑफ द डे दे वुड जस्ट राइट डाउन कि उनका दिन कैसा गया, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ क्या सीखने को मिला, क्या चीज थी जिसको वो नया तरह से कर सकते थे ना। आपने एक डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ी होगी ना, जो हॉलोकॉस्ट में लड़की थी, उसने सिर्फ डायरी लिखी। आज वो दुनिया की ऑलमोस्ट हर भाषा में ट्रांसलेट होकर लोग उसको पढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ लिखने पे ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि हम सब लोग ब्यूटीफुली, वंडरफुली, यूनिकली बने होते हैं, एवरी ईच वन ऑफ अस इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, है ना। हम जो भी लिखेंगे वो क्रिएटिव ही होगा। समझ रहे हैं, ये कहने की बात है कि हाँ, अब क्योंकि चीजें बदल रही हैं, आप देखेंगे कि पहले नॉवेल, पोम्स, आजकल तो चैट जीपीटी बड़ा क्रिएटिव तरीके से लिखता है। हाँ वो भी अच्छा लिखता है, बट आज नई चीजें आ रही हैं। देखिए कि एक फ्लैश फिक्शन आ रहा है। फ्लैश फिक्शन क्या है कि एक ही लाइन में आपने पूरी कहानी कहनी, वन सेंटेंस, है ना। वन सेंटेंस में आप कह सकते हो कि पूरी पूरी मानवता का संताप, पूरी मानव सभ्यता का विकास आप एक लाइन में कह सकते हो। पूरी मानवता का दर्द आप एक लाइन में कह सकते हो, एक शब्द में कह सकते हो। वो क्रिएटिव होगा। तो जब आप लिखने बैठेंगे, जब आप अपने आप को इस काबिल समझेंगे कि मैं लिख सकता हूँ, हाँ, वो अपने आप में क्रिएटिव राइटिंग होगा। देखिए, जब पहले ये आपको मैं बताऊं, जैसे मैं अभी पहले जिक्र किया कि पिछले 30 से 40 सालों में वो लोग जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, जो कभी किसी पढ़ने लिखने नहीं गए, उन्होंने भी कलमें उठाई, उन्होंने भी इतिहास के बारे में, आज के आधुनिक समय के बारे में उनकी क्या सोच है वो लिखी, और उन्होंने बताया कि उनके माता पिता ने जो संघर्ष किए वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। कई बार हमें सिर्फ अपने लिए नहीं लिखना चाहिए, अपने इतिहास के बारे में लिखना चाहिए, अपने देश के बारे में लिखना चाहिए। और जब आप एक कलम उठाते हैं कि ऐसे विचार के लिए जो आपसे परे हो, ना, जैसे हम कहते हैं ना कि एक द आइडिया ऑफ फ्रीडम, फेथ, फैमिली एंड द आइडिया ऑफ लिविंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स, उस विचार के साथ जब कोई चीज आएगी ना, तो अपने आप में क्रिएटिव होगी। आप में उसको
और इलेबोरेट एक मैं 2-3 घंटे बोल सकता हूँ इस बारे में बट एवरी रिटन वर्ड done with a perspective that it has to be unique like we are, वो अपने आप में क्रिएटिव है। और मेरी आप के सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हर रोज कुछ न कुछ लिखें, कुछ न कुछ बात करें, कुछ न कुछ किसी से, जैसे जो लोग नहीं लिख सकते, जो लोग नहीं बोल सकते, उनके लिए लिखें, है ना। ये नहीं है कि ऑथरशिप ना, आप देखेंगे कि ये बहुत सारी बात है कि तुलसीदास ने और भगवान वाल्मीकि ने और इतने बड़े संत, आपको पता है इतनी हमारी संतों, चिंतकों, बुद्धिजीवियों की परंपरा है, उन्होंने कहीं पे भी किसी किताब के अंत में नहीं लिखा कि ये मैंने लिखी, ये बाद में डिस्कवर हुआ। किसी ने लिखा कि अरे हम जाके ढूंढते हैं, पाणिनि ने एक ग्रामर का इजाद किया। द आइडिया ऑफ डूइंग इट एनोनिमसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखें, आप लिखें, ये मत सोचें कि कौन छापेगा, क्या इसकी पब्लिसिटी होगी, है ना। जो ये हुआ है ना कि सेल्स के लिए बेस्ट सेलर राइटिंग जो हुआ है, ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है ना। और मुझे लगता है कि अभी अभी सबसे बेहतरीन लेखन होना बाकी, द बेस्ट राइटिंग इज स्टिल टू टेक प्लेस। और वो हमारे इसी जो वातावरण से होगी, जहाँ जब लोग इस एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए जब कलम उठाएंगे ना, तो अब वो लिखा जाए। आप कोई बुक लिख रहे हैं? मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर रोज मेरा एक डिसिप्लिन है कि मैं अबाउट नॉट इन न्यूमेरिकल सेंस पर 100 वर्ड्स में जरूर लिखूं। आई मीन आई कैन नॉट हिट माई बेड विदाउट दैट। तो काफी सारे कागज इकट्ठे हुए हैं और आई एम श्योर आई विल बी एबल टू ब्रिंग दैट इन ए रीडेबल वॉल्यूम वेरी सून। फैंटास्टिक, ऑसम, ग्रेट। लेकिन अभी जैसे जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के अभी जो जनरेशनल थिंकिंग चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि आगे जो मैरिज का जो आइडिया है ये डाइल्यूट हो जाने वाला है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं, आइडिया ऑफ मैरिज विल ऑलवेज बी देयर? नहीं, द आइडिया ऑफ मैरिज इज नो is is so supreme, it cannot be expressed in words, and marriage, like if you read any good literature, Shakespeare, it says that let me not but the marriage of true minds, लाइक हमने जो विवाह को समझा है, ये इसको भी फिजिकल और एक सोशल सेंस में समझा है। अभी आप देखिएगा कि अभी हम जब साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, तो हम एक साइकोलॉजिकल सेल्फ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ना। तो अब एक मैरिज का सही अर्थ जो है वो सामने आएगा हमारे। अभी अभी जो बिल्कुल विवादों से, लड़ाई झगड़ों से परे जो एक वैवाहिक जीवन का सुख है ना, जिससे कि पहले एक समय था कि जब हमें जनसंख्या, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि हमें एक फैमिली बनाना है, और अब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे पास आप देखिए कि अगर हम फेमिनिज्म में बात करें तो वो कहते हैं कि अडॉप्शन इज वन रेडी ऑप्शन, अल्टरनेटिव टू मैरिज, है ना। तो वो नॉट बिकॉज कि हमें एज ए एलर्जी टू दिस इंस्टीट्यूशन करना है, बट फॉर एज एन एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे करना है कि हम पूरी मानवता के लिए एक बेहतरीन एक सपना देख सकें। मैरिज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैरिज तो आप समझिए कि एक एक इतनी पावरफुल टूल है कि उसके ऊपर हम एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। मैरिज जो है ना, उसका जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, या आप किसी भी सिविलाइजेशन के किसी भी कंट्री में जाएंगे ना, उसकी जो कहेंगे कि लीगल, सोशल, स्पिरिचुअल सैंक्टिटी है, इतनी बड़ी चीज है। नहीं, आजकल मैं समझ रहा जेनजी हूँ। कहता है कि भाई मैरिज में जो नीड हमारी फुलफिल हो रही है, होती है, वो वैसे ही कर लेंगे। हम परमानेंटली किसी के साथ कमिट करें और रहें? जरूरत क्या है मैरिज की?
ये मुझे लगता है concept, कि ये कुछ ऐसा भी ये वाली बात है कि अ, जो जिसको हम बोलते हैं कि टेम्पररीनेस ने थोड़ा सा हमारे उसको ज़्यादा ओवरटेक कर लिया हमारी इमेजिनेशन को। हाँ, मुझे लगता है ये जब ये जो हम सिचुएशनशिप की बात करते हैं कि सिचुएशनशिप ओवर रिलेशनशिप, है ना, वो वाले सेंस में आप देखिएगा जो जो सिचुएशनशिप में रहेंगे वो एक दिन जरूर रिलेशनशिप में आएंगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये इसको ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इट इज़ ब्लोन आउट ऑफ इट्स प्रपोर्शन। ये अगर रिप्लेस होता है, उसके उसके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में और अध्ययन होना चाहिए और रिसर्च होना चाहिए। मैं बहुत कंक्लूसिवली उसके बारे में कुछ कहने से बचना चाहता हूँ। Okay, great. One last message you would like to give to our viewers. अपनी लाइफ में सीखा हुआ कोई भी और बेस्ट लेसन बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से, एनी रैंडम मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव? देखिए, ये बात मैं कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूँ कि जो हम सब लोग सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं, और मुझे टॉप करना है। मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट ब्रिलियंस, नो, इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसी से ज़्यादा नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बट एक उसका हायर पर्पस होना चाहिए कि मुझे हर रोज़ एक नई चीज़ अपने अपनी इमेजिनेशन को एम्पावर करने के लिए करनी चाहिए। आप भाषा सीख रहे हो, आप मेडिकल इंजीनियरिंग, आप साइकोलॉजी का कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं ना। मुझे याद आता है कि एनसीईआरटी की मैं जैसे किताब होती थी एनसीईआरटी में, कोई भी किताब हम उठाते थे ना, पहला पहला पेज आता था एक गांधी जी का जंतर, गांधी जी इज टेलिस्मैन। उसमें ये बात लिखी होती थी कि यदि आप अपने आप को किसी समय दोराहे पे पाओ, जब आप कोई निर्णय न कर पा रहे हो, जब आप अपने आप को ये सोचो कि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, तब आप उस व्यक्ति की कल्पना करो जो आपके हिसाब से आप उससे मिले हो, जो सबसे वल्नरेबल हो, वीक हो, और उस समय ये सोचो कि मेरा ये राइट जाना, लेफ्ट जाना, ये डिसीजन करना उसको कैसे प्रभावित करेगा ना। ये कैसी सेंस थी कि माइक्रो मैक्रो लगते तो डिफरेंट हैं, पर वो कनेक्टेड होते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं ना कि बूंदी सागर होती है ना, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, बट हम इसी पूरी सागर, हमें से मिलके सागर बना हुआ है। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ओशन, स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक ए माइटी ओशन एंड ए प्लेजेंट लैंड। आप कंसिस्टेंटली करिए, हर रोज करिए, अपने टाइम मैनेजमेंट करिए। 24 घंटे इस नेचर ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, सभी को 24 घंटे मिले हैं। अगर जो व्यक्ति अपने 24 घंटे के साथ न्यायपूर्वक अपने उनका इस्तेमाल करता है, कभी भी किसी से ज्ञान मांगने में कोई संकोच मत करिए, है ना। ज्ञान मांगना भीख मांगने से बहुत अच्छी बात है ना। कबीर कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर दूजन के वास्ते मोही ना मांगत लाज। बट मुझे लगता है कि यू वन इफ आई हैव टू बेग फॉर नॉलेज, आई वुड नॉट हेजिटेट एट ऑल। अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, किसी से पूछिए जाके। अगर आपको 100 किलोमीटर भी जाना है, उसके पास जाइए, उसका पाथ पूछिए। ये जो जो जीवन हमें सांसें मिली हैं, ये ज्ञान के परम बिंदु को छूने की एक मौका है ना। ये हम अगर उसको सीख लेंगे, एक नई भाषा सीख सकते हैं, आप एक नया अपने माइंड का एक नया चैप्टर कर सकते हैं। आपने जो काम नहीं करा है ना। मुझे लगता है कि ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे सभी साथियों से कि जब व्हेन इट लुक्स डिफिकल्ट, इट इज मोस्ट इजी टू डू। नहीं, जब आपको लगेगा ना ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इसका मतलब आप उसके इतना नजदीक आ चुके हो कि अब अगर आपने एक दो कदम और बढ़ाया ना तो आप उसको एम्ब्रेस कर पाओगे। नहीं तो दूर से तो सब कुछ ही मुश्किल लग रहा है, बट व्हेन इट इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू, व्हेन यू आर मेकिंग एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट
टू अचीव समथिंग। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि आप सब कुछ अचीव करने की कोशिश मत करो, है ना। सब कुछ अचीव करने में बहुत, जैसे द ग्रेस ऑफ लाइफ, द स्पीड ऑफ लाइफ लाइज इन स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एक चीज से मिलेगा आनंद, आपको मिलेगा तो एक ही चीज से आनंद, है ना। तो आप हो सकता है कि आप इस जीवन को के सारे उनको देखें, उनका उनको एक सेफ डिस्टेंस से देखिए, उन सारे चीजों को, सारे मंजर को, बट ये क्लैरिटी रखिए कि मुझे चाहिए क्या, है ना। ये नहीं है कि मुझे तो एक तरफ क्रिकेट में भी ऊपर जाना है, मुझे आपके साथ टॉप साइंटिस्ट भी बनना है, मुझे नोबेल प्राइज भी जीतना है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आउटरेजियस हो जाता है। आपकी क्लैरिटी विल डिटरमिन द एक्चुअल आउटकम। अगर आपने एक चीज डिसाइड कर लिया कि मुझे मोस्ट लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज बिफोर ह्यूमैनिटी ना, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फर्स्ट द जर्नी बिगिंस एट द इंटरनल लेवल। बहुत ज्यादा ये ना सोचिए कि मैं आज ही जैसे गरीबी को मैं खत्म करके ठीक हो जाऊंगा ना, मैं जो तो आज ये ना जो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दूंगा। पहले आप अपने आप में सुधार करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को जो हम एक माइक्रो लेवल पे अगर हम इम्प्रूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम एक बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते वेरी नाइस, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। तो ज्ञान के लिए स्टार्व करिए, ज्ञान के लिए आगे जाइए, अपने आप को एक फील्ड में बेहतर बनाइए, एक जगह पर अपना फोकस करिए, वहां से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैसेज डॉक्टर मेहरा ने हमें एंड में हमारे व्यूअर्स को दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स से कि हमारा इस पॉडकास्ट का पर्पस है टू रिवील द सीक्रेट ऑफ लिविंग अ बेटर लाइफ। और पर्पस इसकी, एक पॉडकास्ट के बाद कुछ तो बेहतर हो आपकी लाइफ में, कुछ तो इम्प्रूव हो, कुछ तो अच्छा हो। तो वही पर्पस है, आप हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पे पॉडकास्ट करना चाहते हैं, किसके साथ आप चाहते हैं कि हम और पॉडकास्ट करें, किस तरीके का कंटेंट हम और बनाएं। तो आप हमें जो फीडबैक देंगे उससे हमारी हेल्प होगी, तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, बहुत बेहतर पॉडकास्ट बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।